गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जैसा कि बात हुई थी आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। पर आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स के बारे में जानने से पहले शॉर्ट में मैं समराइज करना चाहूँगा सीबीडी को, जो हम देख चुके हैं। द सीबीडी is a legally binding treaty to conserve biodiversity that came in force since 1993. It has three major goals: one, conservation; second, sustainable use; and third, fair and equitable sharing of benefits. As you know, the Secretariat of CVD is based in Montreal, Canada, and operates under UNEP, United Nations Environment Program. The COPs, means Conference of Parties, is organized at a regular interval. On 29th January 2000, the COP to the Convention on Biological Diversity, COP5, adopted Cartagena Protocol on Biosafety that came into force on 11 September 2003. On 29th October 2010, the 10th COP was held at Nagoya, Japan. The Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization, that is ABS, was adopted on this date, 29th October 2010, and entered into force on 12th October 2014. Along with the Nagoya Protocol, that is Nagoya Protocol on Genetic Resources, the COP10 also adopted a 10-year framework for action by all countries to save biodiversity. This is an updated strategy plan for biodiversity. It is officially known as a Strategic Plan for Biodiversity 2011 to 20. It provides a set of 20 targets divided into 5 sections, A to E, that 5 strategic goals. The motto of this strategic plan is living in harmony with nature, and in this plan every signatory state have to develop at least one national biological strategy and action plan, NASAPVs. As I earlier told, the Aichi biodiversity targets are divided into 5 sections, A to E. The first section, the strategic goal, is address the underlying causes of biodiversity loss by mainstream biodiversity across government and society. This section has 4 targets. Target 1 is awareness. Awareness about value of biodiversity and conserve and use it sustainably. The target 2 is very important. It states that integrate
the biodiversity and concerns on biodiversity into national and local development and poverty reduction strategies and national accounting. The target 3 is incentives that are harmful to biodiversity are to be eliminated, phased out, or reformed in a way to conserve and maintain the biodiversity, and of course also positive incentives for conservation and sustainable use of biodiversity should be encouraged. Target 4 is also important. It defines governments, businesses, and stakeholders at all levels have to take steps to achieve or implement plan for sustainable production and conservation. Now, strategic goal B. This strategic goal or this section is specific to the direction of direct pressure on biodiversity and promotion of sustainable use of it. Target 5. The rate of loss of all natural habitats is at least halved and degradation and fragmentation is significantly reduced. तो इस टारगेट के अंतर्गत ये कहा गया है कि कम से कम जो नेचुरल हैबिटेट्स में लॉस हो रहा है उसकी दर आधी हो जाए और डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन कम हो. टारगेट 6 फिश और इनवर्टिब्रेट स्टॉक्स एंड एक्वेटिक प्लांट के बारे में है, जो इनके प्रॉपर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, लीगली सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग के बारे में बात करता है. टारगेट 7 एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, जो इसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट और इसके जरिए इंश्योर करना कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सके. टारगेट 8 पॉल्यूशन से रिलेटेड है. पॉल्यूशन उस स्तर तक कम करना होगा कि वो इकोसिस्टम फंक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए डेट्रीमेंटल न रहे. टारगेट 9 इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड पाथवेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज करना होगा, एंड जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं उनको कंट्रोल और इरेडिकेट करना होगा. टारगेट 10 की जो टाइमलाइन है, आपने देखा टारगेट 1 to 9 इन सभी की टाइमलाइन 2020 तक थी. टारगेट 10 की ओनली 5 टाइमलाइन है, और by 2015 the multiple anthropogenic pressure on coral reefs and other vulnerable ecosystem impacted by climate change and ocean acidification are minimized. This is goal. Strategic goal C जो कि 2020 तक कंप्लीट करने हैं, वह रिलेटेड हैं improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystem, species and genetic diversity. Target 11 is related to the conservation of terrestrial and inland water areas, coastal and marine areas. In this target, it is defined that 17% of terrestrial and inland water areas and at least 10% of coastal and marine areas should be conserved. Target 12 is related to extinction of species.
इस टारगेट के अंदर गोल दिया गया है कि 2020 तक जो नॉन थ्रेटेंड स्पीसीज है उनका एक्सटिंक्शन रुक जाए एंड उनका कंजर्वेशन स्टेटस वो इम्प्रूव हो या सस्टेन हो। टारगेट 13 संबंधित है जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट और एनिमल से। तो इस टारगेट के अंदर ये गोल निर्धारित किया गया है, डिटरमाइन किया गया है कि द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, फार्म्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड of wild relatives is maintained. The strategies has been developed and implemented to minimize genetic erosion and safeguarding their genetic diversity. Strategic goals, जिसमें गोल नंबर 16 को छोड़ के बाकी सभी 2020 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं, वो रिलेटेड है, ये सेक्शन रिलेटेड है टू एनहांस द बेनिफिट्स ऑफ ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। टारगेट 14 के अनुसार इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू वाटर, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ, लाइवलीहुड, वेलबींग आर रिस्टोर्ड एंड सेफगार्डेड टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड ऑफ वुमेन। पर्टिकुलर यहाँ एम्फेसिस आप देखिए वुमेन, इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटी पर दिया गया है, जैसे कि सीवीडी में ऑलवेज दिया जाता है, एंड पुअर एंड वल्नरेबल। टारगेट 15 ये रेजिलियंस से काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, निर्धारित करता है। रेजिलियंस वो कैपेसिटी होती है जहां इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस के बाद में, अगर इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं तो इकोसिस्टम अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करता है और अगेन वो उसी स्टेडी स्टेट में पहुंचने का प्रयास करता है जहां वो पहले था। तो दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। आप इसको इलास्टिसिटी से भी समझ सकते हैं, जिससे इलास्टिक को हम खींचते हैं और उसके बाद वो रिस्टोर होती है, इसी तरह से रेजिलियंस है। इकोसिस्टम रेजिलियंस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू कार्बन स्टॉक्स हैज बीन एनहांस्ड बाय 2020 through conservation and restoration, including restoration at least 15% of degraded ecosystem। इम्पोर्टेंट है, जो टारगेट है 15% तक का है कि डिग्रेडेड इकोसिस्टम एटलीस्ट उनमें रेजिलियंस इंप्रूव हो। ताकि क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन को हम कॉम्बैट कर सके, उसके हिसाब से अडेप्ट हो सके या मिटिगेट कर सके। टारगेट 16 की जो टाइमलाइन है वो 2015 तक है और इस टाइमलाइन के तहत कहा गया है कि जो नगोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग है वो फोर्स में आ जाए, ऑपरेशनल हो जाए, कंसिस्टेंट हो उनकी नेशनल लेजिस्लेशन के साथ में। इसके बाद स्ट्रेटेजिक गोल ई सेक्शन में आते हैं, जो इनहांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, इंपॉर्टेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। टारगेट 17 2015 तक के लिए है। इस टारगेट के अंदर खास तौर पे जिसकी हमने बात की थी कि नेशनल प्लान डेवलप होना चाहिए, उसके बारे में कहा गया ईच पार्टी हैज डेवलप्ड एडॉप्टेड एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। तो ये सारा का सारा जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं वो ये लिखा गया है कि 15 तक या 20 तक क्या अचीव हो जाना चाहिए। टारगेट 18 the TK traditional knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities are respected and fully integrated and reflected in implementation of the convention। टारगेट जो कि 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए वो है नॉलेज, साइंटिफिक बेस एंड टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, इट्स वैल्यू, फंक्शनिंग, स्टेटस, ट्रेंड एंड कंसिक्वेंसेस of its loads are improved। टारगेट 20 फाइनेंशियल रिसोर्सेज से संबंधित है, जो कहता है कि 2020 तक फाइनेंशियल
मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस प्लान का फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जहां से भी संभव हो वो बढ़ना चाहिए अभी के वर्तमान स्तर से। तो इस तरीके से इस आईसी जो टारगेट्स हैं जो कि 2020 तक, या कुछ टारगेट्स जिन्हें 2015 तक पूरा करना है, ये टारगेट्स आईसी टारगेट्स हैं जो कि सीबीडी के अंतर्गत आते हैं। आपको एक चीज और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इंडिया ने जो एनआर, 6th एनआर सबमिट की है बाय एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसने 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स एनबीटीज सेट किए हैं। इंडिया पहली 5 कंट्रीज में है वर्ल्ड में, एशिया में पहली, और हम ये कहें कि बायोडाइवर्सिटी रिच मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से पहली, जो NR6 जो कि सीबीडी के तहत होनी है सबमिट, वो सबमिट की है। एनआर सबमिट करना एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है सीबीडी के तहत। तो इंडिया ने 12 बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स डेवलप किए हैं इन ग्लोबल 20 आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के अंतर्गत। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए। आप इसकी डिटेल्स और देखिए और इसको पढ़िए अच्छे से। थैंक्स।